بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہم شمشاد مانگٹس. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آزاد کشمیر میں سگریٹس کے غیر قانونی دھندے کے حوالے سے سٹوریز بریک کی تھی. ایک دو ہم نے پروگرام کیا، اس کے بعد وہاں پہ چوکیاں لگ گئیں، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ غیر قانونی سگریٹس کے گودام پکڑے گئے ہیں. اس حوالے سے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور یہ پریس کانفرنس جو کی ہے سینئر وزیر جو آزاد کشمیر کے ہیں کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب نے کیا ہے. پہلے وہ سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ہم نے تو اس ایشو کو اٹھایا تھا، پھر وہاں پہ وہاں کی حکومت نے ذمہ داری لی اور یہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے. سینئر وزیر صاحب کا پہلے موقف سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. آج صبح انہوں نے بیبر میں ایک ایکشن کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے چھاپا مارا نیشنل ٹبیکو کمپنی پہ، اور اس کے 8 گوداموں سے 1 ارب 11 کروڑ روپے کا خام مال دستیاب ہوا. اس 1 ارب 11 کروڑ کے خام مال کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں، جب یہ سگریٹس بن جاتے، یہ تقریباً 7 ارب روپے کا سامان تھا. تو ناظرین، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں یاسر عارف صاحب. یاسر عارف صاحب یہ خبر لے کے آئے تھے، بڑی تحقیق کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ. انہوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کریک ڈاؤن کریں تو بڑے پیمانے پہ اربوں روپے مالیت کی یہ سگریٹس کا جو دھندا پکڑا جا سکتا ہے، اور یہ پکڑا گیا. جی یاسر عارف صاحب، یہ کیا ہوا؟ آپ نے یہ بڑی سٹوری بریک کی تھی خبریں ٹی وی پہ. بہت شکریہ مانگٹ صاحب. یہ 17 فروری 2024 کو ہم نے سب سے پہلے یہ ایشو اٹھایا تھا، یہ ہاتھ ڈال دیا ہے. تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ بھمبر کے ان کے آبائی علاقے کے جو انڈسٹریل زون ہے، وہاں پہ جو وہاں پر سے روزانہ کی بنیاد پہ سگریٹس کے تقریباً 10 ٹرک، تقریباً یہ رپورٹڈ ہے، مبینہ طور پہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ 10 ٹرک وہاں پہ ایک جو انڈسٹری ہے، سگریٹ انڈسٹری، وہاں سے پاکستان کے ایریا میں روزانہ کی بنیاد پہ رات کو ٹریول کرتے ہیں، راتوں رات کشمیر سے، جو مکمل طور پر غیر قانونی ہے. اور وہاں پہ انڈسٹریز کے جو ہماری سگریٹ انڈسٹری ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ایف بی آر نے بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا، اور بڑا اس کے اوپر سخت ٹیکس لگائے گئے ہیں، بغیر ٹیکس کے ٹیکس چوری کیا جاتا ہے. اب جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً ایک ٹرک کے اوپر، جو ایک ٹرک سگریٹس کا نکلتا ہے، اس کے اوپر جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے. 1 کروڑ روپے کا ٹیکس جو ہے نا ایف بی آر کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن وہ ٹیکس چوری کر کے تو وہ ٹرکس وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، یعنی 10 ٹرک کی ایوریج ہے تو 10 کروڑ کی روزانہ 10 کروڑ روپے کی روزانہ کی ڈکیتی. یہ وزیر اعظم کے اپنے آبائی علاقے کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے، جہاں سے یہ 10 ٹرک نکل. اور خبریں ٹی وی کو اور آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کے اس فورم سے یہ آواز مقتدر حلقوں تک پہنچی، قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچی. انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور اس ایکشن کے بعد پھر ہم نے فالو اپ سٹوری بھی تقریباً 18 فروری کو دے دی تھی. ان کا ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا، اور وہ ہماری خبر درست ثابت ہوئی. اس کے اوپر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، بالخصوص ہماری جو 2 ایجنسیز ہیں بڑی، انہوں نے اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیا، مانیٹر کیا صورتحال کو، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہاں بھمبر میں موجود یہ فیکٹری واقعی جعلی سگریٹ بنا کر یہاں پاکستان میں سمگل کر رہی تھی. اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ ایکشن لیا گیا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے ہیں اور چوکیاں لگا دی گئی ہیں. پھر کل وقار نور صاحب جو سینئر وزیر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی وہ ہم سب نے ملاحظہ فرمائی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک نیشنل ٹبیکو کمپنی جو ہے، اس کے 8 گوداموں پہ چھاپا مارا گیا ہے، اور جس سے 1 ارب 11 کروڑ کا خام سگریٹ مال درآمد کیا گیا ہے، غیر قانونی تھا. اور اس سے جو بننے والا سگریٹ تھا، اس کی مالیت بن رہی ہے 7 سے 7.5 ارب روپے. خام مال کی مالیت یہ ہے، اور 7.5 ارب روپے یہ سگریٹ بن جانا تھا. اب جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، اس کے اندر ایک چیز ہم نے بڑی کیٹیگریکلی واضح کی تھی کہ ہمیں یقین ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص ہماری جو 2 ٹاپ کی ایجنسیز ہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. اور کیونکہ یہ ہم نے بات کی تھی اس وقت کہ یہ انیشیٹو تھا آرمی چیف کا پورے ملک کے اندر کہ ڈالرز مافیا کے خلاف، سگریٹ مافیات کے خلاف، بتہ خوروں کے خلاف، اس طرز کی پیٹرول مافیا کے خلاف، سمگلروں کے خلاف جو ہے نا ایک پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن کیا جائے. تو یہ اسی کا
हिस्सा था आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ के जो कंसर्न इदारे हैं मुतल्लिका दोनों, उन्होंने इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन किया था और पहले उन्होंने अनवार अल हक साहब को इंफॉर्मेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को। उन्होंने कहा था कि ये इंफॉर्मेशन है, ये फाइंडिंग्स है, इसके ऊपर आप तहकीकात करें। अनवार अल हक साहब ने लगभग तकरीबन कोई एक महीने के अंदर उन्होंने सिर्फ ये प्रोग्रेस की, यानी उन्होंने तहकीकात की 40वां कर दिया। 40वां से पहले ही तकरीबन एक महीना गुजर गया, लेकिन कोई प्रोग्रेस उन्होंने नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि सिर्फ उन्होंने एक फैक्ट्री के मैनेजर को एक्साइज से कह के फारिग करवाया, मअतल करवाया, एक एक्साइज के एहलकार को फारिग करवाया और एक गार्ड को फारिग किया गया। यानी इतना बड़ा स्कैंडल था जिसमें रोजाना 1 करोड़ रुपए के टैक्स की एक रात के अंदर जो है ना चोरी की जाती थी। उस पे अनवार अल हक साहब और उनके इदारे जो एक्साइज है उसने सिर्फ और सिर्फ ये कारगुजारी दिखाई। इस पर जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल अदम एतमाद, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनके मॉनिटर्स बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर JIT बनाई गई। JIT में ISI के जो OC हैं मीरपुर के वो शामिल थे, MI के OC जो मीरपुर हैं वो शामिल थे और DIG पुलिस जो मीरपुर डिवीजन के हैं वो शामिल थे। ये JIT बनवाई गई। लेकिन इस JIT के हवाले से भी अनवार अल हक साहब ने भरपूर कोशिश की कि ये JIT नाकाम हो। उन्होंने अदालत से जो है ना इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया गया इस JIT पे, और अनवार साहब का जो अटॉर्नी जनरल था जिसने गवर्नमेंट की तरफ से जाके इसके ऊपर जो है ना दफा करना था इसका कि ये जो स्मगलिंग हो रही है ये दुरुस्त नहीं हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी वकालत करनी थी, वो जो है ना उन्होंने सुस्ती का मुजाहिरा किया। कोई वकालत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। बिल आखिर वो स्टे ऑर्डर धरा का धरा रह गया और JIT ने मुकम्मल तौर पे ये एक्शन किया। उस एक्शन के नतीजे में फिर ये हुआ कि 8 गोदाम पकड़े गए, जंगल के अंदर बनाए गए थे। ये 8 गोदाम जो जंगल में बनाए गए, ये मलकियत किसकी है? वो कौन सा है ताकतवर आदमी? इस क्लिप के अंदर कर्नल वकार नूर साहब ने खुद वाजे कर दिया है कि इसके मालकान जो है इनका ताल्लुक KPK से है। कुछ मुकामी फ्रंटमैन है वहां के जो कश्मीर के जो उनके आगे उनके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने एहतियातन KPK का नाम लिया है। इसका नेक्सस अफगानिस्तान तक मिलता है। ये एक पूरा बड़ा नेटवर्क था और ये नेटवर्क अरसा दराज से इस तरह से काम कर रहा था कि अगर 8 कनाल की एक फैक्ट्री लगाई गई है तो उसका 4 कनाल का हिस्सा गुज्जर खान के अंदर था, 4 कनाल का हिस्सा भिंबर आजाद कश्मीर के अंदर था। जब गुज्जर खान की पुलिस कार्रवाई करने के लिए वहां पे जाती तो वो ये कहते कि ये आजाद कश्मीर के अंदर बन रहा है। आजाद कश्मीर की पुलिस कार्रवाई के लिए जाती तो वो ये कहते थे कि गुज्जर खान के अंदर जा रहा है। लेकिन अंदरूनी खाना जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो खुद क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस था, वो पैसे लेके इनको छोड़ देते थे। ये जो एक्शन हुआ इसका क्रेडिट आजाद कश्मीर पुलिस को जाता है और पुलिस के साथ हमारे 2 इदारों का जिनका हमने नाम लिया है उनका कंट्रीब्यूशन है। एक्साइज का जो कर्नल वकार नूर साहब ने कहा उसको मुकम्मल तौर पे इससे दूर कर दिया गया था, क्योंकि एक्साइज के एहलकार पहले ही मिली भगत से इनके साथ मिलके ये टैक्स चोरी के अंदर मुलव्वस थे। अब ये 7-7.5 अरब रुपए का एक कंपनी का स्कैंडल है। पर्चा जो हुआ है, कोई मुल्जमान के नाम याद है आपको? कोई पर्चा किस किस के खिलाफ? इसकी डिटेल अगले दिनों हमारे पास मांगेर साहब आ जाएंगी, हम अपने नाजरीन के साथ शेयर भी कर लेंगे। यासर मुझे ये बताएं, ये जो फैक्ट्री वहाँ पे बनती है कश्मीर में, तो फैक्ट्रियाँ तो देखें ना, इस किस्म की फैक्ट्रियाँ इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में भी बन सकती हैं, बल्कि बनती हैं, पकड़ी भी जाती हैं। पिछले दिनों दवाइयों की फैक्ट्री गौरी टाउन से यहाँ पे पकड़ी गई। तो ये कश्मीर में जाके क्यों बनाते हैं? क्या सहूलतकारी है स्मगलरों के लिए वहाँ पे ये फैक्ट्री बनाने में? असल में वहाँ पे सेफ हेवन है ना माजी में, क्योंकि आजाद कश्मीर के अंदर टैक्स की छूट थी। हाँ, टैक्स ये बहुत सारे लोग इस तरह का जो इस तर्ज का धंधा करते थे, उसके लिए वो आजाद कश्मीर के अंदर जाके अपने बराए नाम या इस तर्ज के कोई फैक्ट्रीज की कंपनीज वगैरह जो है ना वो बना लेते थे। टैक्स की छूट होती थी तो उसकी आड़ में जो है ना ब्लैक मनी वो जो है ना खूब जो है ना नाजायज मुनाफा और टैक्स चोरी करके वो पैसा लेते थे। आजाद कश्मीर इस हवाले से बड़ा सेफ हेवन था तो उसमें लोगों के लिए। आपको ये भी तहकीकात करनी चाहिए यासर आरफ साहब। देखें ना, जहाँ पे बिम्बर में ये फैक्ट्री लगी हुई थी या गुज्जर खान में ये लगी हुई थी, तो ये वहाँ से अफगानिस्तान तक पूरा रूट खरीदा जाता होगा ना, क्योंकि स्मगलिंग तो अफगानिस्तान जाती थी। फिर अच्छा मजे की बात है, अफगानिस्तान जाके फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान के राजा बाजार में ही आ जाती है। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये पूरा रूट खरीदते हैं स्मगलर, टोटल बिल्कुल पहले जाते हुए खरीदते हैं, फिर आते हुए खरीदते हैं। तो ये सारा एक तहकीक की जरूरत है कि पहला पूरा रूट जाने के लिए कितने में खरीदा जाता है, फिर वापसी में क्या सहूलतकारी हासिल की जाती है। बिल्कुल ऐसी है। मांगड़ साहब, आप ये अंदाजा करें कि आजाद कश्मीर एक
छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है। ये जो स्कैम पकड़ा गया है ना, ये आजाद कश्मीर के इस खित्ते से बहुत बड़ी बला है। एक फैक्ट्री नेशनल टबैको जिसका नाम लिया है कर्नल वकार नूर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये एक कंपनी के एक फैक्ट्री के 6 गोदाम है और यहाँ पे अच्छी खासी फैक्ट्रीज और मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना वो मुजफ्फराबाद के अंदर भी थी माजी में, वहां पे भी क्रैकडाउन हुआ और बिम्बर के अंदर भी काम कर रही है। अरबों की गेम है और यहाँ पर से ब्लैक मनी निकाल के आजाद कश्मीर के अंदर सियासतदानों को भी जो है ना बैक नहीं, अरबों से मुराद क्या, मुत्तहिदा अरब रुपए, अरब रुपए की जो है ना वो जो है ना इसके अंदर सारा जो है ना ये धंधा शामिल, क्योंकि हमारे अरब भाई भी तो इधर बड़ी गेमें करते हैं ना, आपको पता है, तलोर का शिकार भी करते हैं वगैरह वगैरह। हमारे एन वाला अरब और हमारे लिए कश्मीर के अंदर अरबों के लिए कोई सेफ हेवन नहीं है। एन वाला अरब और अल्फ वाला अरब जो है ना वो हमारे लिए बहुत अरब वो जो नोट और पैसे का होता है हम उसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, जो असल बात है इसमें मांगट साहब, जब ये स्कैम सारा पकड़ा गया, अनवार अल हक साहब ने पूरी कोशिश की कि ये माफिया बच जाए। और तो जब पकड़ा गया तो अनवार साहब से पूछा गया कि अच्छा ये बात बताएं कि ये जो पकड़ा गया है हमारे 1 अरब 11 करोड़ रुपए का खाम माल, 7 अरब की मालियत का जो सिगरेट बन रहा है, ये हम आपके खाते में डालें या आप इसका क्रेडिट लेंगे? इस पे अनवार साहब भागे भागे उन्होंने अपने सीनियर वजीर साहब को कहा कि इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसका क्रेडिट लें। और अनवार साहब इस हवाले से इतने ताकतवर और तवाना है कि जिन्होंने मुक्तदर इदारों को पहले ये बात कही कि मुझे इस माफिया से जान को खतरा है। फिर आजाद कश्मीर की तारीख के अंदर पहली बार रिटायर्ड 6 SSG कमांडोज उनको आजाद कश्मीर पुलिस के अंदर हायर करके अनवारुल हक साहब को मुबैना तौर पे सिक्योरिटी फराम की गई कि अच्छा आपकी जान को खतरा है। बजायर अनवार साहब ये कहते रहे, दूसरी तरफ अनवार साहब क्योंकि उनके पड़ोस पे था और उन्होंने इस माफिया को मुकम्मल तौर पे बचाने की कोशिश की। अगले दिनों में एक और बड़ी खबर आ रही है, अनवार साहब इसी सिगरेट माफिया के एक साबिका सरगोना को, जो माजी के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जिसको जो है ना अपने मनसब से हटाया था, उसको वापस किसी अच्छे मनसब पे जो है ना वो फायज करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब यासर आरफ साहब। नाजरीन, पिछले दिनों हमने एक खबर दी थी कि कीमती जो जंगलात की लकड़ी है, पुष्पा की वो लकड़ी पकड़ी गई थी, वो भी अनवार सरकार ने सेक्रेटरी जंगलात पे दबाव डाला था और वो ट्रक छुड़ाने के लिए। अब ये मामला आ गया सिगरेट्स का। ये 7.5 अरब रुपए मालियत की तो सिगरेट बता रहे हैं यासर आरफ साहब, लेकिन नाजरीन अगर हमारे इदारे थोड़ी सी कोशिश करें तो पता चल सकता है कि इन फैक्ट्रियों ने, चूँकि ये 2 नंबर धंधा करती हैं, स्मगलिंग का धंधा करती हैं, 2 नंबर सिगरेट बनाती हैं, तो लाजमी तौर पे इन्होंने टैक्स भी नहीं दिया होगा। अगर पूरा जिस दिन से ये वहाँ पे फैक्ट्री बनी कश्मीर बिम्बर में और गुजर खान में, कि कब से ये टैक्स चोरी कर रही थी, यकीन माने अच्छी खासी ऑक्सीजन जो है पाकिस्तान की मईशत को, आज़ाद कश्मीर की मईशत को मिल सकती है, लेकिन होता यह है कि हम आधा तीतर आधा बटेर कर देते हैं। ये अच्छा कदम हुआ है कि ये 7-8 गोदाम जो पकड़े गए, लेकिन इन्होंने टैक्स कितनी चोरी की है वो भी सामने आना चाहिए कि वो कितने अरब रुपया है। तो नाजरीन इसका फॉलोअप हम आपको देते रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे और कितनी फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती हैं, या फिर सरकारी पुष्पा की तरह फिर अनवारुल हक सरकार जो है इस पे भी पर्दा डालने में कामयाब हो जाती है। शमशाद मांगट और यासर आरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।